NCH सॉफ्टवेयर। NC So sir, आज जो हम लोग सीखने वाला what we learn like that the initial stage from which basically we have known about the digital marketing. मतलब अगर इंडिया के बात करें, अगर कलकत्ता की बात करें, तो in that cases SEO is a terms people get familiar with from very beginning. मतलब first SEO नाम से वो familiar हुआ, मतलब मार्केटिंग का जो टेक्निक्स है, उसके बाद धीरे धीरे सोशल मीडिया, PPC ये पॉपुलर होने लगा, ठीक है। तो SEO इज अ वेरी लाइक फ्रॉम वेरी बेस। अगर आपको किसी कंपनी में अगर अप्लाई करते हो, किसी कंपनी का अगर ऑर्डर्स लेते हो, मतलब कोई भी वेबसाइट होने के मतलब डेवलप होने के बाद जो एक्टिविटीज बेसिकली क्लाइंट से आपको मिलेगा, दैट इज अ SEO। तो SEO के इम्पोर्टेंस वाइज व्हाई पीपल गिव द सो इम्पोर्टेंस फॉर द SEO, अगर ये बात आपका आए और मे बी द व्हाई यू डू SEO, अगर ये क्वेश्चंस आपको पूछा जाए, तो द मेजर थिंग इज विल कम what is exactly you have to know what is exactly the SEO. If we divide into the SEO, divide into the two sections like SEO. I'm taking an exercise. I'm taking a help of exercise. If we are taking the two steps like SEO, okay, if this is a SEO and if we make it a little bit section wise, if we make it like this, so it will divide into the two sections. SE is search engine or O is optimizations. So any activities we made on our website or on the basis of our website, that is basically cause optimizations. For what? To rank in a search engines. To rank in a search engine for what? For a particular keywords. What is keywords? Whatever the people are searching for your to get your or to find your business. Got it? So keyword or key phrases is a terms, some terms what people usually type in the search engines like Google, Yahoo, Bing, AltaVista, Arcs, whatever the search engines it is. Okay, whenever they are searching, the results will come. To rank on that results in a proper rank, maybe there is a maybe the 10 lakhs results will come. Just I'm giving you one examples in a short. Like if we are searching for example like homemade food. If you are searching the homemade food, so it might be if you check like there is a one এবং 10,000 অযুত লক্ষ নিযুত কোটি 23 crores 30 lakhs such results is there which is matching with the homemade food. Okay, so in that scenarios it is required some activities, some some actions plan to make sure your website is coming in a first 10 search results, because each page consists of the 10 results, 10 search results. So आप जो भी एक्टिविटीज करते हो इसी सर्च रिजल्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छे करने के लिए, वो आपके लिए वो एक्टिविटीज हम लोग SEO के नाम पे जाना जाता है. So not only for Google, for Bing, for Yahoo. That is, I have mentioned the search engines and I have mentioned the search engines like Google, Yahoo, Bing. जो भी एक्टिविटीज करते हो ये Google के लिए सिर्फ नहीं है. It will be for every. हाँ, जो भी एक्टिविटीज करते हो वो particular all the search engines. तो क्या होता है? Why you give the Google is an importance. कोई भी যখন আপনি ওই যে ক্লায়েন্টের মিট করতে গেছিলেন বা ক্লায়েন্টের যেগুলো যে কনফারেন্সে গেছিলেন বা যেটা দেখালেন আমাকে কার্ড, তো ওখানে যখন পোটেনশিয়াল কাস্টমার্স বা ইনফ্যাক্ট অফিসে যখন পোটেনশিয়াল কাস্টমারের সাথে বিডিং করে বা কথা বলে, তখন বেসিক্যালি দ্য এম ইজ বেসিক্যালি টু কাম ফর এ পার্টিকুলার সার্টেন সার্চ ফ্রেম, যার জন্য আমরা কিওয়ার্ড রিসার্চ করেছিলাম। ওই কিওয়ার্ড রিসার্চ করে উই আইডেন্টিফাই দিস 10 keywords or these 10 terms basically people are searching for. Momo in Asansol or Momo home delivery or home delivery services in Asansol, home delivery services in maybe the Kasba, maybe the Kolkata. So when people are searching for, they are looking for that services. And if we
standing in a fast pace, in a fast position, maybe the second position, maybe the third position, whatever, in a fast pace is our fasting. Then to gradually increase our positions in a topper one. Always the topper one gives a major advantage. Got my point? Any confusion? No. First class. So this why we give the Google, because if you check the as per according to the research, 80% People go for Google. go for the Google for searching anything. So if we score in Google, we get a major peoples in my home, and if we check as a SEO parameter wise, if your site ranking Google, तो कहीं ना कहीं बिल में कहीं ना कहीं यहाँ में ऑटोमेटिक रैंक कर जाता है. बट हम लोग जब क्लाइंट अभिषेक जब क्लाइंट को पिच करता है वो बोलता है कि भाई आपका जो एसईओ सर्विसेज है वो हम लोग तीनों सर्च इंजन के लिए काम करेंगे, हम लोग बिंग के लिए भी काम करेंगे, याहू के लिए भी काम करेंगे और हमको गूगल के लिए भी काम करेंगे. असल में क्या होता है, लाइक एक्चुअली वी ओनली वर्क फॉर द एक्टिविटीज व्हिच इज बेसिकली बेस्ड ऑन द गूगल्स, बिकॉज इफ यू परफॉर्म वेल इन गूगल सो ऑटोमेटिकली बिंग एंड याहू में आपका रैंकिंग आ ही जाता है. हाँ, सर्टेन इधर उधर आपका जो सर्टेन टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मैं आगे में शेयर करूंगा, जो याहू और बिंग का रैंक इंक्रीज करने के लिए थोड़ा हेल्प होता है. बट ओवरऑल जो प्रैक्टिस है उसमें 98 to 99% इज अ सिमिलर लेवल्स व्हिच इज बेसिकली वर्क्स फॉर द गूगल, याहू, बिंग इन अ सिमिलर लेवल. आर यू गॉट माय पॉइंट? Yes. डू यू हैव एनी कंफ्यूजन? फाइन. सो एसईओ, अगर एसईओ का डेफिनेशन के हिसाब से पूछे तो क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे बेसिकली एसईओ, अगर मतलब सीधा अगर हम लोग जाते हैं, हम लोग अगर एसईओ व्हाट इज एसईओ अगर गूगल में डालते हैं तो विकिपीडिया का एक नॉलेज आपको यहाँ पे आ जाएगा, विकिपीडिया का एक नॉलेज आ जाएगा. बट बिफोर गोइंग इन दिस विकिपीडिया लेवल, व्हाट आई वांट टू शेयर जस्ट आपको दिमाग में रखने के लिए, एसईओ इज अ बेसिकली ऑनगोइंग प्रैक्टिस. SEO is an ongoing practice. Regular, continuous. Yes, regular and continuous practice to make your site resourceful and popular for your users, so that you can rank in a particular search engine for a particular key phrases or set of key phrases. तो ये प्रोसेस है, जो प्रोसेस के हिसाब से आपका जिम्मेदारी रहेगा कि भाई आप कुछ की फ्रेजेस, अगर होम डिलीवरी सर्विसेज आप टारगेट कर रहे हो, होम डिलीवरी इन कोलकाता टारगेट कर रहे हो, तो आपके साइट पे कहीं ना कहीं वो कोलकाता में वो सर्विसेज होना चाहिए. आप आसनसोल में हो और कीवर्ड कोलकाता है तो इट विल नेवर वर्क्स, बिकॉज आपका एड्रेस, विजिबल एड्रेस कोलकाता में नहीं है, नहीं होगा, रैंक नहीं होगा, होगा. तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे करके कुछ बुराई में मत लेना, मतलब मैं जस्ट एग्जांपल देता हूं कि एवरी वुमेन्स आर ब्यूटीफुल, राइट? बट हम लोग क्या होता है कि शादी के टाइम में जब लड़का देखने आता है तो हम लोग उसको थोड़ा मेकअप डाल देते हैं, थोड़ा और पॉलिश कर देते हैं, थोड़ा आईब्रो करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. कितना लगता है शादी करने के समय हम लोग फेशियल करके जाते हैं कि लड़की को पसंद आ जाए. व्हाई इट इज? बिकॉज वी आर ओवर एक्सरसाइजिंग. इज इट इक्वल फॉर द ऋतिक? इज इट इक्वल फॉर द अभिषेक? आई डोंट थिंक सो. ऐसे जाएगा वो पसंद कर लेगा बिकॉज ही इज ब्यूटीफुल. समझ लो, ठीक है? तो दैट इज बेसिकली सम ओवर प्रैक्टिस करके भी हम लोग कर सकते हैं. दैट इज नॉट द पॉइंट. वी कैन ओवर आसनसोल में भी हो रहा है कि भी कोलकाता का रैंक ला सकते हैं. बट टू इन ए लॉन्ग रन, लॉन्ग कंपटीशन, अगर कंपटीशन बढ़िया है, कंपटीशन बहुत कम्पैक्ट है, तो वो थोड़ा टफ हो जाता है कि एक आयरनिकली जो हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो रैंक लाने में. समझ में आ गए? तो नेचुरल रैंकिंग के लिए क्या चाहिए? होम डिलीवरी सर्विसेज अगर हम लोग पकड़ लेते, एसईओ कंपनी अगर पकड़ लेते, तो इन दैट केसेस वी शुड डिलीवर एसईओ सर्विसेज. We should talk about the SEO in our website. We should talk about the how people can get benefited about the SEO services from your website. Any confusion? Got my point? Got it? Fine, sir. So I hope a little bit understanding you got from the SEO. Why I am taking so much extra time for this by defining this is because ये understanding is very important. क्योंकि बाहर से जाके आपको 2-3 तरीके से लोग मिलेंगे. कुछ एसईओ एक्सपर्ट मिलेंगे जो लगातार 3-4 साल 5 साल काम किए हैं इंडस्ट्री में, और जिनको लगता है अगेन आई एम रिपीटिंग, जिनको लगता है दे आर द एक्सपर्ट एंड सम पीपल्स बेसिकली अगर कोटेशन में तो दे नोज द गूगल एल्गोरिथम्स, दे डिक्लेयर दैट वी नो गूगल एल्गोरिथम हाउ टू रैंक. So what is algorithm?
It's basically the way Google's decide the who will come first, who will come first, second. It's basically comes from the some programming logics. Who will come first? There's some determination factor is there, so that is the comes under the algorithm. Anything done by the programs, as you know, this is running by the software. So software is made by the programs. That's it. A set of programs, or a programs made by the instruction. A set of instructions. So what is instructions? Like if your site have word like home, like delivery, like services. If the site have a certain percentage of this, if the site has a links, if the site has a backlinks from the social media, then the site will come into rank. देन कंपेरिजन कि उनको 10 आपका 2 उनका 8, सो 10 आगे जाएगा, 8 सेकंड आएगा, 2 पीछे आएगा. सो ऐसे करके रैंकिंग का पैरामीटर्स बनता है. एल्गोरिथम है, ठीक है. सो वो क्लेम करता है. तो क्या होता है कि दे डू द बेसिक थिंग्स, डिजिटल सबमिशन कर लिया, सोशल मीडिया कर लिया, कुछ क्लासिफाइड, कुछ बुक मार्किंग, कुछ पार्ट ऑफ एसईओ ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करते हैं, पहले से जो आते जा रहा है, जो रिपीटेड गाइस है, जिसको जॉब नहीं मिल रहा है, वो एसईओ में ज्वाइन करा देते हैं 3000, 5000, 6000 से पहले. अभी सैलरी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया. मैं अभी ऑल द कंपनीज आर ऑफरिंग गुड बिकॉज द इंडस्ट्री इज रनिंग गुड. सो स्टार्टर्स को तो उतना ही मिलेगा ना, 5-6 हजार. We have other students those got the 25k salaries in a study in Kolkata. Yeah, it's not a previous experience. No, it's not. See, salary वो बाद में आता है, क्योंकि आप हम लोग वो पर्टिकुलर सीनियर गाइस इज देयर एंड वो एक्सपर्टाइज लेवल के जो है वो बात डिफरेंट ट्रैक पे चला जाएगा. वो हम लोग सेकेंड लेटर जब टाइम मिलेंगे वो डिस्कस करेंगे कि सैलरीज इज बेसिकली इट्स नॉट बेगिंग. आप जब बेग करोगे कि मेरे को जॉब चाहिए एंड मेरे को ये चाहिए, तो आपको उतना ही मिलेगा 7-8. एंड इफ यू थिंक, इफ यू शो दैट कि भाई मैं अगर 5 प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा हूँ और एक एक प्रोजेक्ट का वैल्यू अगर $300 to $500, तो मैं आपको अराउंड आपको 3-4 लाख का बिजनेस दे रहा हूँ. And I am only handling the whole campaign, and I can handle the PPC. I can handle the PPC budgets and branding for this. So in that case, if I am giving the 5 lakhs business, why not you are giving the 25,000 rupees? And why I should go work for you if you are not paying 25,000? It's straight way. और एक है, हाँ सर मैं कर लूंगा सर. मैं सर यस सर मेरे को आता है. And in a practical, you are not confident. You are not a person who can go forward, who can work, who can execute actually what you are telling in interview work. Got my point, sir? So आप प्रोसीड्यूर वो इंटरव्यू प्रोसीड्यूर जो आपको सिखा जाएगा इन लेटर ऑन, इफ यू रिक्वेस्ट दैट थिंग्स, जो आपके लिए अगर आपको चाहिए वो अलग से क्लास होता है. दैट आई विल गिव. माय स्टूडेंट नेवर बैक द डिमांड्स बिकॉज इट्स समथिंग. अगर मैं नौकरी करता हूँ तो डेफिनेटली आई शुड गेट. इफ आई एम नॉट हैप्पी सो आई विल गेट दैट थिंग. तो क्या होगा, जब सेकंड और थर्ड दिन से मैं और एक नौकरी ढूंढ लूंगा कि या तो मेरे को वहां पे 2000 एक्स्ट्रा मिले. सो सबको आता है. एनीवेज, नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड फॉर द एक्टिविटीज. जब एसईओ के बाद आपको थोड़ा डेफिनेशंस थोड़ा देख लो. सर्चिंग इज अ प्रोसेस. अगेन what I said is also mentioned in Wikipedia, is a process affecting the visibility of a website. Affecting of a visibility of a website or web page in a web searching is unpaid results. मतलब आपका जो रैंकिंग आ रहा है, जो अनपेड रिजल्ट्स है, उसमें जो एक्टिविटीज के कारण आपका रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट आता है, वही सर्चिंग ऑप्टिमाइजेशन है. रमेश सर. और अनपेड रिजल्ट्स इन द सेंस, जब हम लोग गूगल में जाते हैं, जब हम लोग गूगल में ये सर्च किया है, ठीक है, जब मान लो कि हम लोग सर्च किया है फॉर एग्जाम्पल एसईओ कंपनी हम लोग सर्च किया है, ठीक है. नाउ व्हाट हैपनिंग, these results is coming, they are also ranking, They are paid. but they are paid. SEO never works on this. SEO works on this. हाँ. Like this is our website. We are in the number 1 positions holding. So in this case, so what happened? Like over the practice, basically, we have to ensure that we rank. And
सर्टेन केसेस यहाँ पे एक आएगा, अभिषेक के लिए मैं गाइड कर रहा हूँ, आपके लिए गाइड कर रहा हूँ। जब आप मार्केट में पिच करोगे कि आई विल डू एसईओ, तो मार्केट में 2-3 तरीके से एक्सपेक्टेशन बनता है कि भैया मेरे को ये कीवर्ड है और मेरे को इतना दिन में चाहिए। फर्स्ट हुक टू किल योर क्लाइंट फ्रॉम डे वन। একটা কথা আছে আমাদের বাঙালিদের মধ্যে যে বিয়ের রাতে প্রথম রাতে বিড়াল মারার ব্যাপারটা। লাইক ক্লায়েন্টকে যখন তুমি ওই জায়গাটা আসছে যে সার্টেন পিরিয়ডের মধ্যে truly in SEO nobody's in this world, nobody's in this world. I am claiming again, you can go to the any consultant, any people, any expertise level, nobody in this world can claim within certain period of time, within these days, within these months, I will give you the rank for a particular keywords. It's practically not possible. Even স্বয়ং যদি गूगल ओनर बोलते सुंदर पिचाई, हाँ अगर गूगल का अगर सीईओ अगर कोई साइट लॉन्च कर रहा है एंड अगर पर्टिकुलर टर्म से उनको रैंकिंग का जरूरत है, you can't tell within a week you can rank, within a month you can get a rank. It's a system to follow. It's a system to follow. It depends on certain factor. तो आप लोग चेक कर लेंगे कि क्या कीवर्ड है, उसका कंपटीशन क्या है, वो एक प्रोसेस है, वो मैं आपको सिखाएंगे, ठीक है। सो वहां पे क्या होगा कि आपको क्लाइंट को पिच करने की, सर आवर एम विल बी टू डू द एक्टिविटीज एंड गिव द रिपोर्ट्स अकॉर्डिंग टू दैट, एंड दिस इज द प्रोसेस। एंड यस, आपको एक जानकारी चाहिए क्योंकि बिजनेस के तौर पे वो भी आपको समझना पड़ेगा कि एज ए योर बिजनेसमैन यू आर असाइनिंग प्रोजेक्ट टू अभिषेक, सो अभिषेक शुड स्टेट समथिंग दैट व्हेन यू विल गेट ROI, because it's a factor of ROI, right? Return on investment. आपने every month you are paying 10,000 rupees, and Abhishek saying I am doing my SEO and the ranks is not coming. That is also not good, right? So एक expectation, expertise के तौर पे हम लोग assume करके बोल सकते हैं कि 3 to 4 months और 3 to 6 months में थोड़ा long tail 3 to 4 words, 3 phrases आपका रैंकिंग में आ सकता है। एक हफ्ता में भी आ सकता है, एक दिन में भी रैंक आ सकता है, और 1 साल से भी नहीं आ सकता है। अगेन डिपेंड्स ऑन द फ्रेश लेदर मैन्युफैक्चरर इन बागुलाटी, आमबागान, गैसगोरंगोली, that is also a keyword. For that keywords maybe it takes 1 day. A keyword like leather manufacturer, it might take 6 months. Got my point, sir? So it depends on the keyword. Some people make buddhu. Some people make buddhu. A typical SEO consultant, typical SEO company, typical marketer, those don't have even knowledge for the SEO. They are selling SEO because as a marketer, I am also a marketer. For me, SEO दो और कॉफी दो वो मेरे लिए मतलब फैक्टर नहीं होता। मेरे को फैक्टर वही है कि मेरे को सेल करना है, और सेल करना है जिसको जरूरत है उसको समझाना है। सेल इज नॉट बेसिकली लो 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 लो, सेल इज बेसिकली उनको चाहिए मेरे को पिच करने की, वो आपके लिए फिट है। अगर आपको बजट में आता है आप ले लो, बजट में नहीं आता बाद में जाओ, आई विल गो फॉर द नेक्स्ट ऑप्शन। क्योंकि जिनको मर्सिडीज खरीदने की कीमत नहीं है, अगर वो मर्सिडीज आप बोल दो कि मैं बड़ा सेल्समैन हूं, कुछ भी बेच देंगे, वो भी कुछ मार्केटर क्लेम करता है, कुछ भी मैं मार्केटर हूं भाई, कुछ भी बेच देंगे। तो मर्सिडीज का जो प्रोजेक्ट है वो अगर मेरे पास पिच करे तो अभी तो मैं नहीं ले सकता, वो जितने भी फोन कॉल करे, सर मैं पिच कर रहा हूँ, ये फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी, यहाँ पे बूम, यहाँ पे जूम, एक ही तरीका है, आप नहीं होगा। But persons who can afford it, we can give the things, sir. You can choose these things. It might be give you these features. So सोचेगा, वो भी आपको समझना पड़ेगा कि एक जो प्रोजेक्ट है, और भी यहाँ पे ट्यूनिंग दे रहा हूँ, ये सारा जो बात कर रहे हैं आपको दिमाग में ले लो, ये सारा का सारा आपका आगे आने वाले दिन में आपको काम में आएगा, जो बात अभी मैं शेयर कर रहा हूँ। अगेन जब ये ऐसे सीख लोगे, ये आपके लिए एक अर्निंग का कारण बन जाएगा, एक अर्निंग सोर्सेस बन जाएगा। सिर्फ एसईओ चला, एसईओ सीख के, सिर्फ एसईओ सीख के आज के टाइम पे भी आने वाला 1 साल 2 साल में भी आपका फैमिली चल सकता है, अच्छा खासा चल सकता है। दिस एसईओ इज बेसिकली अभी
आ रहा है कि नेगेटिव लेग पुलिंग वाला बिजनेस, नेगेटिव बिजनेस। एसीओ इस मार्केट में अभी के टाइम पे 1000 रुपीज पर मंथ करके भी एसीओ दे रहा है। And there is a SEO is basically people are paying more than lakhs also. समझ में आ रहा है? एक ही एसीओ, दोनों एसीओ कर रहे हैं, ये भी एसीओ कर रहा है, ये भी एसीओ कर रहा है। ये एक को सेल कर रहा है कि लाखों में, ये एक सेल कर रहा है कि 1000 रुपीज पर मंथ, ईयरली पैकेज 12,000 रुपीज। जैसे कि जाफजाल, जैसे कि आपका इंडिया मार्ट, देखिए उसका पैकेज 12,000 3,000। सुलेखा क्या घंटा एसीओ करेगा वो? एसीओ का मतलब वो जो पैसे आपको लेता है वो पर्टिकुलर इज नथिंग बट उनको जो वेबसाइट है वहां पे लीड लेने का तरीका है। आपकी बिजनेस से, आपकी पैसे से लीड जनरेट करते हैं, वही लीड 10 जन के बेच के वो और भी कमा लेते हैं। डेटाबेस सेम डेटाबेस देके जो घंटा का एसीओ होता है। एंड अगेन उनका तो एसी का सिस्टम ही नहीं है ना, जस्ट वो तो अपना वेबसाइट में वो लोग है, but they have a team, they are saying that they are doing SEO, वो analytics, but वो होता डिफरेंट है। तो आपको मार्केटिंग में अभिषेक जब तुम्हें क्लाइंट डोमेस्टिक क्लाइंट हिट करते तो ये जिनिसগুলোকে জানা থাকা দরকার। they do basically a website and आप कोई भी एक चेक कर लेना, आप जो इंक्वायरी सेंड करते हो तो वहां पे 2 प्रोफाइल बना लेना, 2 टाइप का। आप एक को प्रोफाइल लेना कि वही लीड आपको घूम के वो दूसरा प्रोफाइल से आ जाएगा। इफ दे सेल द रोटेट द लीड्स, एंड जो आपका फॉर्म रहता है उनका डेटाबेस सर्वर में रहता है, एंड दैट टूल कार्बन कॉपी उनके पास रहता है। और वो लोग का कीवर्ड्स आप देखेंगे कि वही कीवर्ड जो आपको कीवर्ड रिसर्च आपको जो सिखाया उसी से नहीं आता है। दे गिव्स यू द कीवर्ड्स लाइक कॉटन मैन्युफैक्चरर। आप एक कॉटन मैन्युफैक्चरर हो तो कॉटन मैन्युफैक्चरर इन बेगबागान, कॉटन मैन्युफैक्चरर इन पार्क स्ट्रीट, आपके लिए ये सही रहेगा क्योंकि पार्क स्ट्रीट बेगबागान में ही आपका ऑफिस है। सो लोग सोचेंगे तो पार्क स्ट्रीट बेगबागान में कौन आके मैन्युफैक्चरर ढूंढेगा? तो पीपल थिंकिंग कि भाई मेरा साइट तो रैंकिंग कर रहा है, मेरा साइट तो अच्छा खासा चल रहा है। होम डिलीवरी सर्विसेज इन कॉस्बा और सम मे बी किचन डिलीवरी सर्विसेज। किचन डिलीवरी सर्विसेज का सर्च टाइम्स ही लोगों ने गूगल में सर्च नहीं करता है। वो कीवर्ड है क्योंकि आप भी खुश हो क्योंकि भाई मेरा तो किचन है, एक्चुअली किचन से डिलीवरी हो रहा है। मेरा साइट का नाम भी फ्रॉम आवर किचन, किचन डिलीवरी सर्विसेज इज राइट कीवर्ड्स। बट बहुत लोगों के पास वही नॉलेज नहीं है कि गूगल कीवर्ड रिसर्च है, वो उसको पता चलना चाहिए कि वो कीवर्ड जो कंपनी ऑफर कर रहे हैं वो सही में वो आम आदमी सर्च करता है कि नहीं करता है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। একটা আমি কি ভাবছি আর একটা হলো লোকে কি এক্স্যাক্টলি আমি কি ভাবছি দ্যাট ইজ নট আ ফ্যাক্টর, দ্যাট ইজ নট ইম্পর্টেন্ট এট অল। আমি কি ভাবছি সেটা দিয়ে আমি লোকে কি ভাবছি সেটাকে জাজ করতে পারি। আমার লোক দরকার, আমার দরকার নেই তো আমি তো বিজনেস দিচ্ছি না, আমি সার্চ করে কি হবে, লোক কি সার্চ করছে সেটা দেখতে হবে। ক্লিয়ার স্যার? I hope you got the concepts of the whole overall SEO. Now I am entering into the another history. जब कोई भी एक्सपर्ट आपको पूछेगा कि एसीओ के हिसाब से आप उसको सिखा सकते हो। जस्ट वन एग्जांपल, एसीओ का जो अभी इनपुट्स दे रहा हूं उसमें एसीओ का पूरा नॉलेज आपके पास आ जाएगा। ट्रीट एसीओ एज ए ह्यूमन बॉडी। जब आप कोई भी साइट का एसीओ करते हो वो एक ह्यूमन बॉडी के साथ, एक ह्यूमन फिगर के साथ आप कंपेयर कर सकते हो। कैसे सर, कैसे होगा? जैसे कि एक ह्यूमन फिगर, इफ यू टेक द अभिषेक एज ए ओवरऑल अ पर्सन, तो उनका एक फ्रंट व्यू रहता है, उनका एक बैक व्यू रहता है। मेरा एक फ्रंट व्यू है, एक बैक व्यू है। मेरा जो फ्रंट व्यू है वो आप मान लो कि मैं वेबसाइट हूं जो लोग आम आदमी देख रहा है। मेरा इंटरनल जो है वो पर्टिकुलर नोबडी कैन सी, जो एक्चुअली एक वेबसाइट का सोर्स कोड होता है। सोर्स कोड क्या है? जो देख लो ये जो साइट है, राइट, ये साइट बेसिकली फ्रंट व्यू जो लोग देखता है, इसका सोर्स कोड, दिस इज बेसिकली सीन बाय द सर्च इंजन क्रॉलर। तो क्या है शॉर्टकट की? इट्स कंट्रोल यू और राइट माउस करके भी आप कर सकते हो। राइट माउस व्यू सोर्स करोगे तो वो आ जाएगा। सो दैट वे वी कैन गेट अ सोर्स जो कोडिंग है, ये कोडिंग है। तो सर्च इंजन बेसिकली ये देखता है, फ्रंट वाला नहीं है। तो दोनों को बैलेंस करना है, करके जो आता है उसको बोलता है ऑन पेज। जब फिर से बोलेंगे तो
एसईओ में दो फैक्टर आता है, हम लोग का टोटल जो एसईओ है वो दो फैक्टर में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक होता है कि ऑन पेज, एक होता है ऑफ पेज। दिस इज इफ वी टेक इट, one is on page, another one will come up as the off page। और मैंने इसको बोला है कि अभिषेक यहाँ पे है और एक वेबसाइट है, तो अभिषेक का जो फ्रंट व्यू है और बैक व्यू है उसका टोटल स्ट्रक्चर उसमें बना है। अभी क्या उसका जो अगर यहाँ पे पेट में दर्द हो रहा है तो वो ऐसे बैठा रहेगा, ऐसा चुपचाप बैठ सके वैसा ऐसा करेगा। तो जैसे आपका साइड में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मान लो कि होस्टिंग में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ एल्गोरिथम में कुछ प्रॉब्लम है, आपका साइड लोडिंग ऐसा ऐसा करेगा, मतलब लोडिंग आने में टाइम लगाएगा, कुछ प्लगइन्स काम नहीं करेगा, कुछ सेक्शंस आपको विजिबल नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? मतलब अगर अंदर में प्रॉब्लम है तो दोनों को बैलेंस करना है। तो ऑन पेज इज ऑल अबाउट द एक्टिविटीज व्हाट यू आर डूइंग ऑन अ वेबसाइट। आपकी जो वेबसाइट होंगे, मान लो कि फ्लिपकार्ट आपका वेबसाइट है, तो flipkart.com पे जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हो, उनके फ्रंट व्यू, इंटरनल व्यू, मतलब कोडिंग पे और फ्रंट सेक्शंस में, दोनों को मैं जो आप बैलेंस करो, जो भी एक्टिविटीज कर रही हो साइड में, वो आपका ऑन पेज होता है। व्हाट इज ऑफ पेज? ऑफ पेज इज बेसिकली आप पर्संस, जब आप कोई भी बंदा, अभिषेक जितने लोगों के साथ कनेक्टेड है, आज मिस्टर शोभादत्ता जितने लोगों के साथ कनेक्टेड है, वो उनका एक स्ट्रेंथ है। उसी से जैसे पीयूष, मिस्टर शोभादत्ता एंड अभिषेक एंड सुशील को, चारों को अगर मैं खड़ा कर देता हूं तो एक आता है कि फ्रंट व्यू, जो देखने में किसको अच्छा लगता है। ओके ओके, दिस गाय, दिस गाय, दिस गाय, दिस गाय, सो दिस इज द पैरामीटर, सो इस फेज हो गया। देन आता है कि अच्छा उसमें रियली कितना अच्छा है, तो उसमें क्या होता है कि अभिषेक बहुत अच्छा है, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बट क्या हो रहा है, मे बी he takes drinking, he taking alcohols, he taking the other negative things, so अंदर में हो अच्छा नहीं है, सामने देखने में सुंदर लग रहा है। मे बी যেমন don't take it otherwise রাজনৈতিক, যেটা আমরা বলি, মানে কথা প্রসঙ্গে কথা বলতে বেশি কথা বললে বাজে কথা আসে, যেমন কি লাইক আমি নাম নিচ্ছি না রাজনীতি নেতার, ওটাই एग्जांपल দিতে চাইছিলাম। तो anyway forget about those। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि if drinks is if animals are taking the drinks, तो उनको अच्छा लगता है, मतलब ग्लो आता है, बाहर में ग्लो आता है, फर्सा दिखता है, मतलब क्या क्या होता है आई डोंट नो। तो पीपल्स रिकमेंड कि वो अच्छा देखने में हेल्प होता है एवरीडे इफ दे टेक्स अ लिमिटेड स्कॉच और समथिंग। सो क्या होता है उसमें, सामने में तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, अंदर में उसका किडनी, उसका लीवर खराब हो रहा है, वर्चुअल लुक्स। तो सामने में जो साइट है उसका फ्लैश, उसका जो वीडियोस आ रहा है वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बट अंदर में गूगल का जो सर्चिंग है वो कॉल नहीं कर पा रहा है। तो जब कॉल नहीं कर पा रहा है, नेगेटिव सिग्नल जा रहा है गूगल के पास कि द साइट इज नॉट यूजर फ्रेंडली, द साइट इज नॉट सर्चिंग इन फ्रेंडली, द साइट इज नॉट शेयरिंग ऑल द इंफॉर्मेशन। कॉल ऐसे से ऊपर नीचे नहीं हो पा रहा है। हाँ, मतलब जो भी मतलब वीडियो हो रहा है वो जो सर्चिंग इन कॉल नहीं कर पा रहा है, रीड नहीं कर पा रहा है, तो दैट इज पर्टिकुलर वन फैक्टर्स इज कमिंग। तो वो आपका ऑन पेज। ऑफ पेज में क्या होता है कि ये चारों का, मान लो कि चारों फिट है, चारों फिट है, चारों मेंटेन कर रहा है, जिम कर रहा है, एवरीडे डूइंग द गुड वर्क्स, मेडिटेशन कर रहा है, गुड फूड्स ले रहा है। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट इज अभिषेक कितने लोगों के साथ कनेक्टेड है, मिस्टर शोभादत्ता कितने लोगों के साथ कनेक्टेड है, और उसमें कितने लोग इन्फ्लुएंशियल है, वो जाके आपको बनेगा कि उनका क्या स्टेटस है। सोशल नेटवर्क, सोशल नेटवर्किंग, द एक्टिविटीज, द कनेक्टिंग, वो आता है ऑफ पेज। तो एक साइट का ऑन पेज होता है जो साइट में आप अच्छी अच्छी चीजें डालते हो, कंटेंट डालते हो, इंफॉर्मेशन डालते हो, साइट का जो भी जरूरत है वो पूरी करते हो, वो आपका ऑन पेज है। और वही साइट जितना साइट के साथ कनेक्टेड है, जितना अच्छा अच्छा साइट के साथ कनेक्टेड है, वो होता है ऑफ पेज। तो सर ऑन पेज इज मोर टेक्निकल बिकॉज वहां पे तो सोर्स कोड पे काम करना पड़ता है। नहीं, सोर्स कोड में काम करना पड़ता है, वो मतलब वही यूजुअली सोर्स कोड में वो डेवलपर लोग काम करते हैं। बेसिकली वी इम्प्लीमेंट, वी गिव द सजेशंस एंड ऑल टू द डेवलपर और द डिजाइनर और द वेब डेवलपर। So that is not our work. It's not practically our work. We work as a consultant.
we will give the instructions and this on page में क्या क्या हाँ क्या क्या चाहिए क्या क्या recommendation है तो वो बाद में आएंगे बट इन अदर हैंड्स अगर मेरा साइट है तो वो भी आप मेरे को जानना है कि क्या क्या चेंजेस मैं खुद कर सकता हूँ वो भी आप सीखोगे कि कैसे खुद आप एसईओ का जो चेंजेस है वो कैसे आप कर पाओगे तो ऑफ पेज में क्या मतलब कि ऑफ पेज इज लिंक बिलिंग लाइक इससे अदर टर्म आता है लिंक बिलिंग मतलब आपका साइट मान लो कि आप यूट्यूब में सबमिट कर रहे हो तो वहां पे आपको एक लिंक नहीं मिल रहा है तो क्या हो गया यूट्यूब के साथ आपका कनेक्टेड हो गया तो इट ट्रीट एज ए यूट्यूब गिव यू अ वोट फॉर योर वेबसाइट मतलब इसमें क्या थोड़ा सा कोडिंग स्किल का भी जरूरत पड़ता है कि नॉट रिक्वायर्ड ऑफ पेज में मतलब इट्स नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड जो भी है थोड़ा बहुत वो आपका प्रोसेस में आप सीख जाओगे थोड़ा बहुत HTML का जरूरत होता है और प्रोसेस में आपको आ जाएगा डोंट वरी बहुत लोग क्या करते हैं इंडस्ट्री में जस्ट क्रिएट अ हाइप कि नहीं देखो मैं जो काम करता हूँ ना वो काम में मेरे तरफ आने के लिए आपको थोड़ा नॉलेजेबल होना चाहिए भाई मैं जो काम करता हूँ थोड़ा मतलब कोई भी बंदा बोलता है कि मैं जो काम करता हूँ वो आपसे कम है छोटा है तो दिखाने के लिए बोलता है कि यहाँ से आपको कोडिंग सीखना पड़ेगा PHP का नॉलेज चाहिए बहुत सारा बंदा आता है लेकिन अंडर सीखना पड़ेगा तो मैं अगर PHP सीख लूंगा मैं अगर डिजाइनर सीख लूंगा तो डिजाइनर क्या करेगा डेवलपर क्या करेगा सबका अलग अलग काम है सबका अलग अलग काम है डिजाइनर इज अ क्रिएटिव गाइस भाई हम लोग मार्केटिंग करेंगे हम लोग पिच में हम लोग का मुंह से जो बात निकलेगा वही हम लोग का सेल पॉइंट है हम लोग उसमें अच्छा है वो सोचो अलग जो जिसका जो डिपार्टमेंट है उसका काम करने देते नाउ इट्स आल्सो কি আমি জাস্ট একটা কম্পেয়ার করে বলছি মার্কেটিং এ নিতে 4P বলে 4P's এ প্রোডাক্ট প্রাইস প্লেস প্রমোশন এখন আমরা যেটা পড়েছিলাম সেটা হচ্ছে এখন আরেকটা দুটো P অ্যাড হয়েছে একটা হলো basically people the other one is packaging so packaging is something which gives a shape of the product whatever the product is the packaging gives a very good concept marketing itself is a process to identify and satisfy the need of the customer so where packaging is something on page ব্যাপারটা কি packaging একদম yes sir product এখানে product packaging আরেকটা কি বলেন pricing place মানে physical distribution promotion আর product price place promotion promotion মানে হচ্ছে যেটা প্রমোশন সেটা চলে আসবে অফ পেজ আর বাদ বাকি সব অন পেজ আচ্ছা প্রোডাক্টটাও চলে আসবে অন পেজে ফিজিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন চলে আসবে অফ পেজে ডিস্ট্রিবিউশন প্রাইসিং অন পেজ আর প্যাকেজিং অন পেজ আর কার কাছে যাচ্ছে সেটা একটা ফার্স্ট কনসেপ্ট এখন আসছে মার্কেটিং এ সো পিপল উইথ হুম উই উইল গোইং টু ডিল সো পিপল ইজ দ্য ফার্স্ট P what comes in now okay people packaging product price place promotion so that is also come under the off page because you have to select the in off page sector also that is I'm also coming who is your target audience to whom you will connect সেটা কি অফ পেজে আসবে অফ পেজে আমাদের একটা টার্ম আছে ব্যাড নেইবারহুড ধরো অভিষেকের খুব ভালো বন্ধু আছে ডক্টর আছে ইঞ্জিনিয়ার আছে ও অ্যাডভোকেট আছে লয়ার আছে এমনি ও একটা সেকশনে কি হয় কিছু বন্ধু আছে যে বন্ধুগুলো পার্টিকুলার হচ্ছে কি দে আর বেসিক্যালি ক্রিমিনাল অফেন্স আছে ঠিক আছে পাড়ায় জানি যে দে আর নট আর গুড পিপলস তো একদিন ধরো ও বা পাড়ায় রকে বসে ধরো ও ওদের সাথে চা খাচ্ছে গল্প করছে তো পাশ দিয়ে যদি ও শ্বশুর বাড়ি কেউ যায় বিয়ে হয়েছে না বিয়ে হয়নি এখন ধরো উদ্ভিদ কেউ ধরো যাচ্ছে আমার মারাত্মক সো ইজ দ্যাট কেস then you identify this guy as a good no but ওর কাছে অনেকগুলো ভালো অপশন আছে ওর ডাক্তার বন্ধু আছে so a small connectivity to the bad side can hamper your ranking or reputations that treat a off page as a bad neighborhood that means তুমি প্রমোশনস এর জন্য দেখছো যে ট্রাফিক ডেটিং সাইটে খুব বেশি ট্রাফিক আছে ক্যাসিনো সাইডে খুব বেশি ট্রাফিক আছে গ্যাম্বলিং সাইডে আছে সেখানে তুমি তার সাথে লিংক বিলিং করলে সেখানে তুমি তোমার ওয়েবসাইটের লিংকটা দিলে এক্স্যাক্টলি সেটা সেটাই এবার সেটার সাইডে তুমি দিলে তখন কি হলো সেটা কিন্তু এসইও তে হ্যাম্পার করবে আলটিমেটলি কোয়ালিটি কন্টেন্ট তোমার কোয়ালিটিতে হ্যাম্পার করবে র্যাঙ্কিং এ হ্যাম্পার করবে শুরুতে আমি কিছু কাজ করেছি তো
তো 2017-তে প্রথমেই আমাকে ক্লায়েন্ট গুলো ওগুলো রিমুভ করার জন্য Exactly it is. Now it is coming as a disable links. এটা একটা টেকনিক চলে আসে ওই জিনিসগুলো যে রিমুভ করো, তার জন্য দেখবে এটা আমার মামার ছেলে হয়েছে, মামার ছেলে প্রচুর পয়সাওয়ালা। এবার ওই ছেলে মানে বন্ধু খায় ওই সবগুলো রয়েছে, কোথাও মেয়ে পাচ্ছে না বিয়ে করার, মানে প্র্যাকটিক্যাল জিনিস বলছি। লাস্টে মেয়ে খুঁজতে হলো আগরতলা থেকে, যেটা জানতে পারে। তারপরে কাস্টমাইজ করা হলো প্রোফাইলটাকে ডিফারেন্ট ওয়েতে, দোকান দিয়ে দেওয়া হলো, দোকানে বসানো হলো, দেখানো হলো যে বিজনেস করছে, তারপরে গিয়ে মেয়ে পেলো, তারপরে বিয়ে হলো। তো such kind of things you are customizing that thing, you are removing that bad neighborhood from that purpose. So that is basically a practice যেটা আমরা ধীরে ধীরে শিখবো। তো এসইও তে আশা করি তুমি বুঝতে পেরেছো। गूगल में जब लोग साइट में एसईओ रैंकिंग की थी तो गूगल ये भी जज करता है क्या कि इसका लिंक बिल्डिंग कैसा कैसा साइट्स के साथ है? वही तो मैं यहाँ पे बोला है। हाँ, वही मैं रिकन्फर्म कर रहा हूँ। दोनों सेक्शंस पैरामीटर्स को नजरअंदाज करके आपका रैंकिंग डिसाइड होता है। दोनों फैक्टर्स के अंदर में जब वो आया है तो ये रिजल्ट्स निकालता है, दिस वंस। गूगल अगर ये जज कर लिया कि नहीं ये गलत वेबसाइट के साथ लिंक्ड है जो, हाँ तो वो रैंकिंग हट जाएगा, रैंकिंग विल बी इन डिले, कंपटीशन में हट जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रैंकिंग, हाँ, एथिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप यू गॉट some ideas about the SEO and তুমি কাউকে এক্সপ্লেইন করতে পারবে। সবসময় মাথায় রাখবে একটা এক্সাম্পল, এসইও প্রসেসটা নিজেকে নিয়ে কম্পেয়ার করবে। নিজেকে যেভাবে তুমি প্রমোট করছো, নিজের ভালোর জন্য যেভাবে তুমি প্রমোট করছো, সেটা এখানেও ঠিক যায়। যেমন তোমার কেরিয়ার বাড়ানোর জন্য তুমি আজকে এখানে শিখতে এসেছো, তুমি এখানে ট্রেনিং নিতে এসেছো, তুমি এখানে টাইম ইনভেস্ট করছো, তুমি এখানে মানি ইনভেস্ট করছো, কেন? আর বেটার কেরিয়ার, আর বেটার ফিউচার, আর বেটার আর্নিং। সেম থিংস তোমার ওয়েবসাইটে এই যে ব্লগ তুমি লিখছো, কন্টেন্ট লিখছো, তুমি সেখানে সময় দিচ্ছ, তুমি সেটাকে শেয়ার করছো, লোকে এসে কমেন্ট করছে, লোকে এসে শেয়ার করছে, তুমি ভিডিও দিচ্ছ, তুমি পডকাস্টিং দিচ্ছ, তুমি ইমেজ বানাচ্ছ, তুমি পিডিএফ বানাচ্ছ, তুমি ইমেজ দিচ্ছ, কার জন্য? অডিয়েন্সের জন্য। যত তুমি ওটার উপরে কাজ করবে, যত তুমি ওটার উপর সময় দেবে, তোমার অথরিটিটা বাড়তে থাকে, তোমার র্যাঙ্কিংটা বাড়তে থাকে। তো এই দুটোকে ব্যালেন্স করে বেসিক্যালি র্যাঙ্কিংটা আসে। ওভারঅল পৃথিবীতে যতগুলো ওয়েবসাইটে র্যাঙ্কিং ফ্যাক্টর কাজ করে, এই দুটো ফ্যাক্টরের উপরে তারা কাজ করবে। ঠিক আছে, তো এবার আমরা ঝটপট আমরা জেনে নিই, ফটাফট আমরা আসবো এসইও। যে আমরা যখন এসইও আমরা করবো, যখন আমরা এসইও করার কথা আমরা ভাবি, যখন অফিসে কোনো একটা প্রজেক্ট পায়, সেই প্রজেক্টের দুটো প্যারামিটার হতে পারে, দু ধরনের প্রজেক্ট হতে পারে। কি ধরনের প্রজেক্ট হতে पारे सर? लाइक दो साइड हो सकता है। एक साइड आइदर ये वेरी फ्रेश, एकदम नया साइट है, मान लो कि स्टार्टअप, जैसे कि अगर ऑफिस कुछ वेबसाइट लॉन्च कर रहा है तो वो स्टार्टअप है। पीयूष अगर कुछ वेबसाइट कर रहा है तो वो नया साइट है। उनके फॉर्म और किचन्स, दो इज ओल्ड साइट, दो इज न्यू साइट, दो इज मे बी 3 months ओल्ड, बट उन्होंने कुछ काम नहीं किया तो न्यू साइट है। एसईओ में कुछ काम नहीं किया, साइट बना, कंटेंट बना, प्रमोशन कुछ नहीं किया तो न्यू साइट है। और एक साइट आपके पास आ सकता है which is existing साइट, जो ऑलरेडी 3-4 साल से मे बी एसईओ कर रहा है, 3 साल से पुराना है। तो ये दो प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकता है सर। एज ए मेंटर मेरा जिम्मेदारी यही है कि आपको जो नॉलेज मैं दे रहा हूँ, ये ऐसे नॉलेज दे रहा हूँ, अगर मैं थ्योरेटिकल अगर जाता तो ये नॉलेज आपको बाद में ये क्वेश्चंस अराइज होता और कंफ्यूजन होता। आज के क्लास के हिसाब से आपको आई कैन गिव यू द 100% गारंटी दैट लेटर ऑन वो आपको कुछ कंफ्यूजन होगा नहीं, क्योंकि आपके पास जो ऑप्शन आएंगे वो मैं आगे से आपको बोल रहा हूँ, जस्ट आपको याद रखना पड़ेगा। तो दो तरीके के वेबसाइट आपको आएंगे, एक आपका नया वेबसाइट, वो एक्टिव हो सकता है, आपका टाइम की हो सकता है, एक आएगा ओल्ड साइट जिसमें काम हुआ है ऑलरेडी। तो ये दोनों वेबसाइट के लिए ट्रीटमेंट एक होगा नहीं, अलग होगा। क्या क्या करेंगे एसईओ में, स्टेप्स एसईओ स्टार्ट करने से क्या क्या स्टेप फॉलो करना पड़ता है, वो मैंने यहाँ पे आपके एक्सेल शीट के हिसाब से मैंने समझाने की कोशिश किया है। दो साइट है, न्यू साइट एंड ओल्ड साइट। ठीक है, तो फर्स्ट जो आता है वो आता है चेक द वेबसाइट ऑलरेडी डन एनी एसईओ एक्टिविटीज और नॉट, ओल्ड साइट और न्यू साइट। ये आपको पहले कंफर्म कर लेना है। साइट देख के, साइट को चेक करके, साइट का एनालिसिस करके आपको चेक करना है, क्लाइंट को पूछ के, इंफॉर्मेशन देख के आपको चेक करके आपको पैरामीटर्स डिसाइड करना है कि ये नया साइट या ओल्ड साइट। कैसे करके दिखोगे कि सर ये ओल्ड साइट और न्यू साइट दिखा दे रहा हूँ। हाँ सर बोलो। এটার কোনো টুলস আছে যে যেটাতে আমরা বুঝতে পারবো? দেখেছি
Oh no. एसीओ बैकलिंक से कैसे करना है? সেটা হয়। domaintools.com यहाँ से चेक करके हम लोग जान सकते हैं कि ये डोमेन कितना पुराना है एंड কার নামে রেজিস্টার্ড আছে এগুলো আমরা এখান থেকে জানতে পারবো। এক্সাম্পল এটা দেখবেন আমারটা যে ওইটা দিয়ে বোঝায় পাওয়া যাবে কিনা সেটাই তো দেখছি। Officer.in If you check this, so we identify whether this is how much old, how many years old, ये आपकी जानकारी मिलेगा। প্রিয়াঙ্কা দত্তার নামে এটা সেভ হয়েছিল, s.309 redifmail.com দিয়ে এটা বুক করা হয়েছিল, created on 2016-10-20 मतलब ये आपका नवंबर दिसंबर जनवरी অক্টোবরে এটা 22 তারিখে এটা ইয়ে হয়েছে আর এটা এক্সপায়ার করবে 2017 এ। করার পরে পার্টিকুলারস এইটার পোস্টিং যেটা ওভারহেডিতে আছে করে এখানে ইনফরমেশনস গুলো এখানটা থাকবে। আমরা এখান থেকে ক্লায়েন্টকে মেল করে ওই ইমেল আইডিটা পেয়ে যাই। तो this is the basically case we will get all the information. So in that case basically what we can do, we can identify মানে আমি বলছি পৃথিবীর যে কোনো ওয়েবসাইট আছে এই ডোমেন টেলে গিয়ে আমি ফেলে এটা খুলে দেখবো তার ডিটেইলস পেয়ে যেতে পারবো। এত এটা তো সিক্রেসি ধরে থাকছে না, প্রোটেক্টেড কি করে? Now there is a questions. There is a one point is a privacy policy. Privacy policy যদি আপনি কেনেন ওটা একটা আলাদা সার্ভিস দেওয়া হয়, যখন আপনি ডোমেন বুকিং করেন তখন আপনার আরেকটা প্রাইভেসি পলিসির একটা ইয়ে থাকে, আপনার কিছু এক্সট্রা টাকা আপনাকে নেয়, তখন আপনার এই ইনফরমেশন কখন বুক হয়েছে কখন ইয়ে হয়েছে সেটা আপনি দেখতে পাবেন, কিন্তু কোথাও মানে এই যে নাম আর ইমেল আইডি গুলো এগুলো হাইড করা থাকে, আচ্ছা আচ্ছা, তখন সেটা দেখতে পাবেন না। রেজিস্টার কে কার নামে হয়েছে এটা দিতে এই ইনফরমেশন আপনি পাবেন, ঠিক আছে? ইমেল পাবেন না, রেজিস্টার নাম পাবেন না, ठीक है? So anyway, so I hope you got the idea। पीयूष समझ में आ गया कि कैसे नया पुराना सेट? अभी मैंने डिसाइड कर लिया कौन सा नया कौन सा पुराना। ओके, नेक्स्ट इज बेसिकली मेरे को क्या चाहिए, मेरे को सेकंड स्टेज जो आएगा वो बैकलिंक एनालिसिस रिपोर्ट मेरे को तैयार करना है। अगर ये नया साइट है तो मेरे को बैकलिंक एनालिसिस जरूरत नहीं है। व्हाट इज बैकलिंक? बैकलिंक इन द सेंस जो आप पेश कर रहे हो कौन कौन साइट से लिंक किया है, जैसे अभिषेक बोल रहा था कि 2016 में 2015 में जो काम किया है 2016 में वही रिमूव करने के लिए उनके पास प्रोजेक्ट्स आ रहा है। दैट मीन्स हम लोग एसी इज एवरग्रीन, एवरी टाइम द रूल्स एंड ट्रेंड्स इज चेंजिंग। जो 15 में काम करता था 16 में वो ऑब्सोल्यूट हो चुका है, 17 में नया कुछ आ रहा है। सो जो पुराना आपने गलती किया है वो आपको सुधारना है, तो उसके लिए भी कम बनता है, मतलब नेगेटिव থেকে আলগুলো খোরাক का চলে আসে। दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर इंडस्ट्री, ठीक है? तो बैकलिंक जो होता है, पुराना साइट होगा तो मेरे को बैकलिंक का जरूरत है। हम लोग चेक कर लेंगे कहाँ से वो पर्टिकुलर्स उनको लिंक मिले हैं, तो दिस टेक्निक्स कहाँ से करेंगे वो पर्टिकुलर्स मैं आपको सिखाएंगे और नेक्स्ट क्लास। मैं जस्ट आपको स्टेप्स आज दिखा दे रहा हूँ, ठीक है? नेक्स्ट इज बेसिकली आपको ऑन पेज वेबसाइट एनालिसिस एक रिपोर्ट आपको निकालना है। ऑन पेज वेबसाइट एनालिसिस रिपोर्ट इन द सेंस वो दोनों का ही जरूरत है, मतलब ऑन पेज मीन्स ऑन पेज का जो भी स्टेटस है वो साइड में फ्लैश है कि नहीं, वो ड्रिंक कर रहे कि नहीं कर रहे। क्या करते हैं शादी से पहले एक लोग भेज देते हैं चाय की दुकान के सामने, लड़का का पूछ लेते हैं कि दादा ছেলেটা কিরকম, एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन यू गैदर। ये कैसे करेंगे ऑन पेज? दैट इज बेसिकली वी विल गिव यू द ट्रेनिंग्स। मैं स्टेप्स दिखा रहा हूँ, तो ऑन पेज दोनों के लिए ही जरूरत है, नया पुराना दोनों के लिए जरूरत है। नेक्स्ट इज बेसिकली कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च आप लोग आगे पहले किया है, बट वो यूजुअली थर्ड पोजीशन फोर्थ पोजीशन में आता है, बिकॉज उसमें आप करके आप क्या करते हो, गैदर करके आप क्लाइंट को भेजते हो कि भैया मैंने ये रिकमेंडेशन किया, अभी आप देख के मेरे को फाइनल करो कि ये कीवर्ड्स मैंने सर्च किया, इन कीवर्ड्स आई हैव रिकमेंडिंग फॉर यू। ওটা থাকতে পারে অথবা ও আরেকটা
add করে করে এটা আনা, বাট এটা দুটো ক্ষেত্রেই করতে হবে, ठीक है। नेक्स्ट इज बेसिक कीवर्ड रिसर्च, मतलब कौन कौन कीवर्ड से मैं रैंक लिए काम करेंगे एसईओ में, वो मेरे को डिसाइड करना है। Suggestion मतलब मैं दूंगा और फाइनलाइजेशन Client करेगा। द क्लाइंट जिसका वेबसाइट है ही विल फाइनलाइज। डेफिनेटली ही इज पेइंग यू, सो फाइनल करेगी कि ये कीवर्ड से मेरे को rank আমি करना है। ডক্টর হিসেবে ওষুধগুলো আইডেন্টিফাই করে বলে দেবো যে এই ওষুধগুলো তোমার দরকার। দরকার, এবার ও যে ওষুধটা খাবে সেটা খাবে না, খেলে খাবে না, তো অসুস্থ হবে না। একদম একদম ঠিক তাই, একদম পারফেক্ট কথা। এই অন পেজও সেম জিনিস, আমরা যখন অন পেজে রিপোর্ট বানাবো অনেক ক্ষেত্রে আমরা যেগুলো রেকমেন্ড করি ক্লায়েন্ট কিন্তু নেবে না অভিষেক, তো তখনও কিন্তু আমাকে কাজ না কেন নেবে না, এই কারণে কাটবো যে ওই যে জিনিসগুলো অনেক ক্ষেত্রে গোড়ামি থাকে, মার্কেট এই ব্যাপারটা হয়ে যাবে। गोरामी इन द सेंस गाइस, मेरा जो साइट है उसमें कुछ कंटेंट नहीं रहेगा, सिर्फ इमेज ही चलेगा, नीचे में कोई कंटेंट का जगह मैं नहीं रखना चाहता हूँ, मेरा जो चल रहा है वो जो फ्लैश चल रहा है फ्लैश ही रहेगा, वहां पे स्लाइडर नहीं होगा, मतलब टेक्निकल जो सजेशन हम लोग डालेंगे। बोल रहे हैं मींस आई एम द मार्केटर, आई हैव द एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू दिस विल बेनिफिट यू। हाँ बोलो, একটু ওয়েট করো না, একটু ওয়েট করো, দেখ দিস। मतलब मैं अगर क्लाइंट को दूंगा आई एम द मार्केटर, आई एम टेलिंग यू दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर योर वेबसाइट, बट स्टिल इफ ही सेज we'll have to take the final call from them only because they are the one who are paying us। ऑब्वियस ऑब्वियस जो पैसा देता है उसका ही सुनना पड़ता है, हम लोग तो सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। এখানে এসইও স্কোর কি এটা জিজ্ঞাসা? হ্যাঁ, ও বলছে এসি স্কোর ইজ বেসিক্যালি এটা হুইচ টুলের প্যারামিটারস অনুযায়ী ও এটাকে একটা পার্সেন্টেজ আকারে ও এখানটা দেখিয়েছে। দিস ইজ নট দ্য অ্যাকচুয়াল থিংস, মিন্স এই যে ওনার যে কোয়েশ্চেন্স রয়েছে 13% হোয়াট নেক্সট করলে করা যাবে, এটা কিন্তু তুমি এখানে পাবে না বা বলতে পারবে না, দে উইল নট গেট দ্যাট এক্সপ্লেনেশন। এটা নরমালি কি হয় কি ওয়েবসাইটে যদি একটা টাইটেল থাকে, একটা ডেসক্রিপশন থাকে, একটা কিওয়ার্ড সেকশনস থাকে, এই যে প্যারামিটারস গুলো রয়েছে ওয়েবসাইটটা যদি ওপেন হয়, ওয়েবসাইটটা যদি লোডিং টাইম কম নেয়, তখন ওই প্যারামিটারস অনুযায়ী ও একটা স্কোর দেখিয়ে দেয়। তো দিস ইজ নট 100% করানো হবে, হ্যাঁ, তো কিন্তু এখন অত পার্সেন্ট যদি করানো হবে তাহলে ফার্স্ট হয়ে চলে আসতো। so it's not like that। और एक क्वेश्चन तो anyway हम लोग कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखो ऑन पेज जो वेबसाइट वो एनालिसिस रिपोर्ट आपको बोला है कि ये निकालना है। नेक्स्ट इज बेसिकली कीवर्ड रिसर्च करके कीवर्ड कंफर्म करना है। नेक्स्ट में करंट रैंक रिपोर्ट बेस्ड ऑन द फाइनलाइज्ड कीवर्ड सेट, मतलब 10 जो कीवर्ड आप लोग चूज करेंगे क्लाइंट से, जो 10 फाइनल कीवर्ड होगा वो नया साइट के लिए रिपोर्ट बनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि नया साइट का तो रैंक होगा ही नहीं। একটা কিওয়ার্ড আপনি পেয়েছেন যে এসইও কোম্পানি কলকাতা, আর ওয়েবসাইটটা এক মাস আগে বানিয়েছেন, তো এসইও কোম্পানি কলকাতাতে র‍্যাঙ্কে আসবে না সেটা 99.99%, তো ইউজুয়ালি তার র‍্যাঙ্ক রিপোর্ট দরকার পড়ে না, কিন্তু ওল্ড সাইট হলে আমি তার র‍্যাঙ্ক রিপোর্ট বের করব। ওল্ড এন্ড নিউ প্যারামিটারটা কতখানি হবে? এক মাস হলে নিউ? নো নো নট লাইক দ্যাট, ইটস বেসিক্যালি যদি আমি সাইটটা গিয়ে দেখি যে ও ব্যাকলিংকস 0 আছে, যদি ও 3 মাসের অ্যাটলিস্ট পুরনো সাইট, তো আমি ওইভাবে করে আমি ওর কিছু হিসেবে আমরা করতে পারি। প্লাস ও যদি এসইও কাজ করেছে, আমি জানি যে ও এসইও কাজ করেছে, তখন পার্টিকুলার আমি র‍্যাঙ্ক রিপোর্ট চালাবো। তো নিউ সাইটসের ক্ষেত্রে নরমালি র‍্যাঙ্ক রিপোর্ট দরকার হয়, তাও আমি দুটো ক্ষেত্রেই চালাতে পারি। যদি আমার সাইট হয় আমি নরমালি চালাই না, ব্যাকলিংক অ্যানালিসিসটা কি করে দেখতে হবে? ওটা আমরা দেখাবো এগুলো, যে ওই সাইটে কি কতটা बैकलिंक আছে কি আছে। क्रिएट योर ऑन पेज डॉक्यूमेंटेशन, ये हो जाने के बाद आपको एक वो जो रिपोर्ट मैंने बोला डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, यहाँ से स्टार्ट होता है, दिस इज द एरिया। आपका इतना तक आपको रिसर्च वर्क, ग्राउंड प्रिपरेशन, दिस इज अ ग्राउंड प्रिपरेशन एरिया, एंड दिस इज दिस इज अ बेसिकली एक्शन एरिया up to this much। End of the month, how to create backlinks and activity reports, this much basically activity, this much will be the activity wise, ठीक है। ये मैं एक ग्रुप कर देता हूँ, एक्टिविटीज, this actionables, हाँ, this will be basically preparations, find outs, हाँ, and this is basically reporting, presentations, methodology। तो यहाँ पे आपका क्रिएट योर ऑन पेज, जो यहाँ पे मैंने ऑन पेज वेबसाइट एनालिसिस रिपोर्ट बनाया, तो वहां से मेरे को पता चला कि ओके फाइन, ये इसका केमिकल इशू है, अभी पीयूष बोलेंगे केमिकल इशू किया है, आएंगे तो कुछ इश्यूज आपको मिलेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स मिलेंगे साइट में, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एज ए कंसल्टेंट आपको एक रिपोर्ट निकालना है, वो रिपोर्ट आपको ये ऑन पेज में आएगा।
मतलब ये आपने डायग्नोसिस किया है, ये आपका डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, समझ में आया सर? ओवर हियर वी विल diagnose the website. Over there we are just writing the prescriptions, suggestions, medicines. So यहाँ पे हम लोग मेडिसिन देंगे. तो कैसे करेंगे सिखाएंगे, डोंट वरी. नेक्स्ट इज बेसिकली हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप्स होगा, you have to implement this by developer, webmaster, clients, do it yourselves. मतलब क्या हुआ, मतलब यही हुआ कि अगर जैसे रिपोर्ट आपको बन जा रहा है, देन आपका नेक्स्ट स्टेप्स क्या हो रहा है, उसको इंप्लीमेंट करना. तो इंप्लीमेंट आप खुद कर सकते हो, आप क्लाइंट को फॉरवर्ड कर सकते हो, क्लाइंट जहां से भी कर सकते हैं, डेवलपर से करा सकते हो, वेबमास्टर से करा सकते हो. यूजुअली हम लोग रिपोर्ट निकालने के बाद क्लाइंट को फॉरवर्ड कर देते हैं. अभी साइट तो मैंने नहीं बनाया, तो जिसने बनाया तो क्लाइंट उसको फॉरवर्ड कर देगा उसको इंप्लीमेंट करने के लिए. वो अगर चार्ज करेगा नहीं करेगा वो क्लाइंट के साथ वो समझ लेगा. कुछ टाइम क्लाइंट वो ऐसे कर देता है, सरेंडर कर देता है, नहीं भैया मेरे को कुछ आता नहीं है, मेरे को कुछ जो डिजाइन किया डेवलप किया उससे कुछ लेना देना नहीं है, आप कर दो. जैसे कि उनको बोला कि तो वो बोले কে করেছে না করেছে জানি না এখন আমার নেই. তো ইন দ্যাট কেসে আপনি তখন পার্টিকুলার বল ইন ইওর কোড, তখন তুমি কি করছো যে यस आई कैन डू फॉर दिस मच विल चार्ज इम्प्लीमेंटेशन. नाउ देयर इज अ क्वेश्चंस कि मैं अगर आता है मेरे को टेक्निकल आता तो आई विल डू बाय माई सेल्फ, तो आई विल हायर डेवलपर और आई विल गिव इट इन फाइनेंसिंग. अगर मेरे को उससे $200 मिल रहा है, $200 से आपको $1000 तक आपको मिल सकता है इंप्लीमेंटेशन के लिए, ओनली दिस सेक्शंस. तो ये के लिए आप मिल जाए तो आप $100 में एक डेवलपर को कि ये इंप्लीमेंट कर देगा, तो आपको $100 आपका कमाए. अगर वो बोले $200 तो आपको कुछ कमाई नहीं है वहां से, क्योंकि आपका जरूरत भी नहीं है कमाई का. Super punctual. Is it doctor? Next is basically start link building, means off-page optimizations and promotions. It's ongoing projects. तो आपको क्या करना है, आपको लिंक बिल्डिंग इज बेसिकली आपको स्टार्ट करना है. लिंक बिलिंग स्टार्ट करना है, लिंक बिलिंग स्टार्ट हो जाएगा, वेबसाइट का लिंक बिलिंग स्टार्ट है, मतलब ऑफ पेज आपका स्टार्ट हो जाएगा एंड यू कैन डू योर वेब पेज एसईओ का जो सेकंड सेक्शन है ऑफ पेज. हो फर्स्ट पोजीशन आपको ऑन पेज बोला है, वो आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दे रहे हो, और ऑफ पेज जो है वो आपका यहाँ पे देखो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स. तो आपने मान लो कि यहाँ पे आप लोग सीखोगे, जैसे कि सीखोगे बिजनेस ड्यूटी सबमिशंस, आप लोग सीखोगे क्लासिफाइड, आप लोग सीखोगे गेस्ट पोस्टिंग, आप लोग सीखोगे आर्टिकल प्रमोशंस, ऐसे काफी सारे मेथड्स है. तो मेथड्स पर्टिकुलर आप सीखोगे एंड सीखने के बाद वो काम आपको एवरीडे करना है, थोड़ा ट्राई करके करना है. अभी यहाँ पे आएगा कि वो 10 कर रहा है, आप 5 कर रहे हो, तो कौन आगे जाएगा, वो आगे जाएगा. उसी बेस में आपको करके जाना है. समझ में आ रहा है? ये 5 कर रहा है, ये 10 कर रहा है, बट दिस गाइस 5 is a very qualitative website. क्वालिटेटिव वेबसाइट के उससे लिंक मिल रहा है, तो इनका एडवांटेज ज्यादा जाएगा. तो इस बैलेंस ऑफ द गुड वर्क. नेक्स्ट इज आपको ब्लॉगिंग एंड कंटेंट मार्केटिंग प्रमोशन इनटू सोशल मीडिया साइट्स. ये आपका थोड़ा और एक नया सेक्शन आया है. पहले हम लोग ये दोनों कर देते तो काम चलता था, अभी ये भी मैंडेटरी हो चुका है कि ब्लॉगिंग पार्ट आपके साइट में रेगुलर बेसिस होना चाहिए, प्रमोशंस आपका रेगुलर बेसिस होना चाहिए, दैट आल्सो गिविंग अ सिग्नल, मतलब सोशल मीडिया में शेयर होना चाहिए. ये दोनों अभी एसईओ का एक फैक्टर बन रहा है, तो मैंने इसको अलग करके रखा है जो दोनों के लिए ही जरूरत है. नेक्स्ट इज बेसिकली ये हो जाने के ये आपका एक्टिविटीज रेगुलर बेसिस रहेगा, मतलब दिस टू. ठीक है, उसके बाद आपका काम खत्म होता है. एंड ऑफ द मंथ यू हैव टू क्रिएट बैकलिंक्स एंड एक्टिविटी रिपोर्ट, मतलब आपने बैकलिंक्स जो आपने बनाया उसका आपका बैकलिंक का एक रिपोर्ट बनाना है, एक्टिविटीज आपने जो किया है उसको रिपोर्ट रखना है. तो ये आप जो सीख जाओगे, आपके अंदर में अगर कोई एसईओ बंदा है तो आप इससे रिपोर्ट ले सकोगे. वो बोला कि সুভাষদা আজকে প্রচুর খেটেছি, আজকে প্রচুর প্রমোশন করছি ওয়েবসাইটে. ঠিক আছে, প্রচুর বলতে কি বোঝায়, রিপোর্টে ধরা পড়বে. রিপোর্ট কিভাবে বানাতে হয় দেখিয়ে দেবো, ঠিক আছে, ওটা আমাদের প্রসেসের মধ্যে থাকবে. नेक्स्ट यू हैव टू क्रिएट रैंक रिपोर्ट्स. आपको रैंक रिपोर्ट्स बनाना है जो आपको एक टू डिटरमाइन द ग्रोथ. देखा यहाँ पे मेंशन किया टू डिटरमाइन ग्रोथ. पहले हम मैंने कीवर्ड फीचर्स करके वो यहाँ पे रैंक रिपोर्ट लिया था, दिस एरिया देख रहे हो ना, यहाँ पे रैंक रिपोर्ट लिया था
और यहाँ पे भी रैंक रिपोर्ट ले रहे हैं, तो क्या होगा, दोनों में हम लोगों का ग्रोथ नजर आएगा। एग्जैक्टली। तो आप क्लाइंट के पास पिच कर पाओगे, सर आपका ये रैंक 500 में था, प्लस पी, अभी ये 400 में है, तो रैंक का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं? से इसके लिए भी कोई टूल होगा ना? हाँ। देन क्रिएट अ गूगल एनालिटिक्स रिपोर्ट्स एंड ट्रैफिक एनालिसिस रिपोर्ट, जहां से आपको यू कैन गो हेड फॉर द योर रिपोर्ट्स टू योर, अगर क्लाइंट का होता है तो क्लाइंट को सेंड करना है, अगर खुद का होता है तो खुद भी रिपोर्ट निकाल के आपका वेबसाइट पे वो इम्प्लीमेंटेशन और चेंजेस डालना है। नेक्स्ट इज बेसिकली एवरी मंथ लर्न फ्रॉम योर रिपोर्ट्स एंड सेट योर एक्शन प्लान, दैट विल बी माय सजेशंस। ঠিক আছে, সো কারণ কি প্রত্যেক মাসেই তুমি বুঝতে পারো তোমার গ্রোথ কত আছে, কোথা থেকে লিঙ্ক আসছে না আসছে, তাতে কি ইমপ্রুভমেন্ট আসছে। দেখা যাবে যে যেমন পরিবারে যদি 10টা বাচ্চা থাকে, তো 10টা বাচ্চাকে সমানভাবে মানে গ্রোথ দেওয়া যায় না। দেখা যায় প্রথম একটা, তার মধ্যে একটা খুব ইন্টেলিজেন্ট, তার সে পড়ার আগ্রহী আছে, মা বাবা তাকে পড়ানোর জন্য যত প্রকারে সম্ভব সে চেষ্টা করে। ঠিক একইভাবে আমাদের 10টা কিওয়ার্ড কিন্তু একভাবে পারফর্ম করবে না। দেখা যাবে তার মধ্যে কোনো একটা দুটো কিওয়ার্ড অভিষেক দেখবে কি ও 50-এ ডুবে গেছে, 70-এ ডুবে গেছে এক মাসের কাজের মধ্যে। ওই দুটোর উপরে আমরা ফোকাস করি, যাতে ওগুলো অ্যাটলিস্ট আমার ফার্স্ট পেজে চলে আসে, তখন আমি ক্লায়েন্টকে দেখাতে পারি যাবে যে এই দুটো কিওয়ার্ডস আর এখানে এটা কি, এখানে ধরা পড়ে যাবে रैंक ये भैया, ये जो यहाँ पे तो मेरे को नजर आ जाएगा ना कि कौन कीवर्ड्स मेरा ग्रोथ आ रहा है, कौन कीवर्ड्स मेरा रैंकिंग किस पोजीशन में है। যে 10খানা কিওয়ার্ড ছিল তার মধ্যে থেকে হোমমেড টিফিন সার্ভিসেস এট কসবা, এটা যে খুব ভালো ক্লিক করছে সেটা আমি আইডেন্টিফাই করতে পারবো, তাহলে তাকে প্রমোট করতে থাকবো। তাকে আমি চেষ্টা থাকবে যে ওটাকে আগে পুশ করে নিয়ে আমার ইয়েতে করে নেওয়া, ওই ফার্স্ট পেজে নিয়ে আসা। যে ফার্স্ট পেজে নিয়ে এলো তখন ওকে আমার মেনটেনেন্সের জন্য ওকে রাখে দেখাবো। ওর আগে 10টা আমি লিঙ্ক বিল্ডিং করছিলাম, 5টা করলেও আমার থেকে যাবে। আর ওখানে যে 5টা আমি যেগুলো র্যাঙ্ক করেনি তার দিকে আমি ফিটটা দিতে আরম্ভ করবো, এফোর্টটা সেভাবে করে যেভাবে করে রিপ্লেস করতে পারি, রিপ্লেস করতে হবে। বাট ইউজুয়ালি রেকমেন্ডেড কি যে সেট অফ কিওয়ার্ডটা মিনিমাম 6 মাস কাজ করার জন্য বলি, বা 3 মাস কাজ করার আচ্ছা জন্য। র্যাঙ্কিং কি উইদাউট নো চেঞ্জ হতে পারে এনি টাইম, একদিনের মধ্যে চেঞ্জ হতে পারে, একদিনের মধ্যে চেঞ্জ। আজকে আর মাসে কালকে আজকে অভিষেক একটা এমন একটা জিনিস করেছে যেটাতে ধরুন আমার কম্পিউটার হ্যাঁ মানে ও একটা এমন একটা জিনিস করেছে তো র্যাঙ্কিং হয়েছে, কারণ কি আমার हमेशा बोलो मैं 10 मिनट के अंदर 2 बजे से स्टार्ट कर रहा हूँ आपका, हाँ। और आप वीडियो देख लीजिए, मैं वीडियो एक शेयर किया था आपको, लिंक शेयर किया था आपका स्काइप में भी शेयर किया है शायद, कल शेयर किया था वो। आपका वीडियोस क्या ना वो मे भी रिकॉर्ड साउंड नहीं आ रहा था, तो मैं एक बैच का सेम वॉल्टी 4G के ऊपर मैंने एक प्रोजेक्ट आपको दिखाया उनको, और वही आपका वीडियोस बना है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपका, कल दिया था मैंने, आप स्काइप में थोड़ा चेक कर लो। हाँ, तो वॉल्टी 4G बोल के दिया हुआ है, वो एक बार चेक कर लीजिए, तो आई थिंक यू विल गेट अ आइडिया। और उसी तरीके से 1-2 और वीडियो बना लीजिए, आई थिंक इट विल बी परफेक्ट। ठीक है, थैंक यू। तो आई होप यू गॉट द होल पॉइंट। ठीक है, सो इसमें कोई कंफ्यूजन है, ये स्टेप में कोई कंफ्यूजन है तो नेक्स्ट क्लास में don't miss the class right now we are in a track, and if anyone's losing, so you have to take the videos and you have to learn by yourselves and carry forward. ठीक है, and अगर possible होता है कि वो we are not able to tell that things की नेक्स्ट क्लास में वो कब हो, जब होगा तो वो अगर बैच अगर 5 होगा मतलब 2 है, तो इन दैट केस अगर पॉसिबल होगा देन only we can give। Maybe you can do in another way, like कोई भी बंदा मिस कर तो मेरे यहाँ पे वो जो कल्चर मैं कर देता हूँ कि जो आते जो गैप रहता है, मतलब क्लास शुरू होने से जो गैप रहता है, तो दूसरे को हेल्प करो। तो वो आप जिसे उसको दिखा रहे हो, उसको सिखा रहे हो, उसको बोल रहे हो, तो आपका भी प्रैक्टिस हो जा रहा है। तो यू आर मेकिंग इन दैट वे कि उनसे वो आपको नॉलेज मिल जाएगा। नेक्स्ट डे बेसिकली व्हाट विल डू, विल गो फॉर दिस वे। ये जो स्टेप्स है, ये स्टेप्स से हम लोग इसको खत्म करेंगे, पूरा प्रोसेस एकदम एकदम एकदम। ठीक है सर, वेब डिजाइनिंग और वेब पेज डेवलपमेंट एक ही कोर्स में आता है या दोनों अलग अलग कोर्स है? 2 अलग है। वेब डिजाइनिंग वेब डिजाइनिंग इज स्पेसिफिक जॉब, उनका काम है डिजाइन करना। डेवलपमेंट और एक अलग सा है, और डेवलपमेंट में भी बहुत सारा आपको ये है मतलब कैटेगराइजेशन है, ASP डेवलपर, DSP डेवलपर, ऐसे करके